Good evening, everyone. My voice is audible to all. Okay, good. My screen is now also visible. I have presented the screen. Okay, good. So, students, see, in the last lecture, we have seen the comparison of alpha rays, beta rays, and gamma rays. Whatever. Now, in this class, we'll be looking for the next topics, that is usage of isotopes, radioactive isotopes. Okay, so it is misconception that radioactive elements are used only for making an atom bomb. Radioactive isotopes are also used in various fields such as scientific research, agriculture, industry, medicine, etc. Radioactive substances are used in two ways. Now, by using the radiation alone or by using the radioactive element itself. Okay, so radioactive elements काय असतं हे वगैरे आपण मागच्याच क्लासमध्ये बघितलेलं आहे. आणि हा जो काही पार्ट आहे नॅचरल रेडिओ ऍक्टिव्हिटी, आर्टिफिशियल रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स, हा पार्ट तुमच्या सिलेबस मधनं एक्सक्लूड केलेला आहे. ओके, म्हणजे हा पार्ट तुमच्या सिलेबसला नाहीये. दिस पॅराग्राफ ऑल्सो अँड दिस कम्प्लीट पेज. Okay, so this is not the part of your syllabus, so that we will not waste our time in this on this page, that is 157. Okay, just remember. सो जसं की मी तुम्हाला लास्ट क्लासमध्ये सांगितलं होतं की चर्नोबल म्हणून एक वेब सिरीज आहे बहुतेक की मूवी आहे, तर त्याच्यामध्ये हा जो एक्सप्लोजन झाला होता ना, तो त्या एक्सप्लोजन विषयी म्हणजे सांगितलेला आहे, किंवा तो जो मूवी आहे that is based on this incident. So the Chernobyl disaster. See, on 26th of April 1986, the graphite reactor in the Chernobyl atomic power plant exploded, and suddenly the radioactive isotopes and radiation came out. Due to this episode, radioactive isotopes entered the human body through water and land and caused genetic disorders. These got carried further into the next generation. Thyroid disorders increased in children as well as adults. As a result of this, the incidence of throat diseases is greater there in other places. सो चर्नोबल म्हणून जी जागा आहे तिथे एक ऍटॉमिक पॉवर प्लांट जो आहे तो एक्सप्लोड झाला. त्याच्यामुळे रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट जे आहे किंवा रेडिएशन जे आहे ते पसरलं आजूबाजूला, आणि थ्रू वॉटर अँड लँड. ओके, इट्स फाईन इफ यू आर लेट, नो प्रॉब्लेम. सो तर ते वॉटर थ्रू, लँड थ्रू जे रेडिएशन आहे किंवा जे रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप्स आहेत ते ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर झाले, आणि बिकॉज ऑफ द रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप्स they did the genetic disorders in a human body, and also the genetic disorders carried further in the next generation as well. सो थायरॉइड म्हणजे जो गळ्याला एक ग्लँड टाईप येतो ना, सो थायरॉइड तुम्ही ऐकलं असेल नाव थायरॉइड विषयी. सो दिस दिस इज बिकॉज ऑफ दॅट इन्सिडेंट. म्हणजे थायरॉइडचे जे पेशंट्स असतील, सो ते पेशंट्स चर्नोबल सिटीमध्ये किंवा त्या एरियामध्ये जास्त सापडतात बिकॉज ऑफ दॅट इन्सिडेंट. ओके, नाऊ सम केमिकल सबस्टन्सेस इन डे टू डे लाईफ. सो आता आपल्या चॅप्टरचं नावच आहे सम युजफुल सबस्टन्सेस. ओके, सो आपण वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट द सबस्टन्सेस दॅट वी जनरली यूज. सो याच्या अगोदरचे जे सबस्टन्सेस होते ते मोस्टली आपण काही बघितलेले आहेत, काही नाही बघितलेले. ओके, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज यांच्याविषयी आपण पुस्तकांमध्येच ऐकतो, बरोबर. नाऊ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड द सबस्टन्सेस आर नोन टू अस. आपल्याला यांच्याविषयी माहिती आहे. ओके, वी नो अबाउट इट. नाऊ द फूड दॅट वी ईट, objects like clothes, utensils, watches, medicines, and other objects are made from various kinds of matter. These affect our health directly or indirectly.
लेट अस लर्न अबाउट सच सब्सटेंसेस। अर्थात आपल्याला जब हम कुछ बाहर खाना खाते हैं या फिर कुछ भी बाहर की चीज हम कंज्यूम करते हैं, सो इट इज सेड दैट कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज there are some certain there are certain substances or chemical substances added to the food which is sold outside, okay, and that is not good for health. So that's why we are advised to not eat food from outside. So what are those substances, how unhealthy they are? Okay, so that is what it told here. So see, food colors and essences. Now you know about this. Food colors means what? See, food colors are mixed in most soft drinks and foodstuffs available in the market. बरोबर. आता थम्सअप जे असतं ते ब्लॅक कलरचं असतं, स्प्राईट जे असतं ते ग्रीन कलरचं असतं. ओके, सो व्हॉट गिव्स देम द कलर? So these substances like food colors or essences, these food colors are in the form of powders, gels and pastes. Food colors are used in domestic food colors are used in domestic as well as commercial products. Certain colors and essences are added to ice cream, ice candies, sauce, fruit juices, cold drinks, pickles, jams, and jellies. Food colors are often found to be added to packaged meat, that is chicken or mutton, chili powder, turmeric, sweets, and other similar substances so as to give them a good color. So फूड कलर आपल्याला कुठल्या कुठल्या सब्सटेंसेस मध्ये बघायला भेटतात, किन किन चीजों में हमें फूड कलर्स देखने को मिलते हैं, इनकी लिस्ट यहाँ पर हमें दी है. और आई एम श्योर वी कैन मेक अ लिस्ट बिगर देन दिस इफ वी हॅव आस्क्ड टू मेक अ लिस्ट. ओके, आपल्याला जर एक लिस्ट बनवायला सांगितली की वेगवेगळ्या कलरचे फूडची लिस्ट बनवा, सो वी कॅन मेक द लिस्ट longer than this. So we know that. And see, harmful effects of artificial food colors. Food colors added to pickles, jam, and sauce contain small quantities of lead and mercury. See, lead and mercury. These can be harmful for those who consume these products on a regular basis. So, see, these two substances are used in the pickles, jam, and sauces. So, we have to avoid consumption of these pickles, jams, or sauces frequently. म्हणजे आपल्याला परत जास्त वेळा ते खायचं नाही, कधीतरी एखाद्या वेळेस खाल्लं तर हरकत नाही, नो प्रॉब्लम. अगर कभी कभार हम खा रहे हैं तो दैट्स फाइन फाइन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर कंज्यूमिंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, सो इवन इफ वी आर कंज्यूमिंग दैट, वी हॅव टू सी द इन्ग्रेडियंट्स. म्हणजे कुठलाही तुम्ही फूड प्रोडक्ट घेणार तर त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स नावाचा एक कॉलम असतो किंवा तिथे लिहिलेलं असतं इन्ग्रेडियंट्स काय काय आहे त्याच्यामध्ये ह्या फूड प्रोडक्ट मध्ये. सो यू हॅव टू चेक दॅट. इफ यू फाइंड दीज टू सबस्टन्सेस, लीड अँड मर्क्युरी, लिस्टेड ओव्हर देअर, तिथे जर तुम्हाला त्यांचं नाव दिसलं, सो समजून म्हणजे यू कॅन अंडरस्टँड की दिस इज हार्मफुल फॉर हेल्थ इफ वी कंझ्युम इट फ्रिक्वेंटली. ओके, सो जे रेड कलरचे पिकल्स असतात ना, मिक्स पिकल असेल किंवा मँगो पिकल, तर त्यांच्यामध्ये पण थोड्या प्रमाणात हे सबस्टन्सेस असतात. सो वी कॅन कंझ्युम द पिकल विच आर मेड ॲट होम. ओके, सो घरी बनलेले जे पिकल्स आहेत ते आपण यूज करू शकतो, बट जे बाहेर जे रेडीमेड पिकल्स असतात, वी हॅव टू ट्राय अँड अवॉइड दोज पिकल्स इफ these substances are added to them. Now, diseases like ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, can affect children due to expressive consumption of food with added food colors. बघा, ADHD नावाचा एक डिसीज पण आहे. हा डिसीज काय आहे? अटेन्शन डेफिसिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर. म्हणजे याच्यामध्ये एखादा स्टुडंट असतो फॉर एक्झाम्पल, ज्याचं कुठल्याच गोष्टीमध्ये लक्ष लागत नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही आता ऑनलाईन क्लास सुरू केलाय, मोबाईल सुरू करून ठेवलाय, मी इकडे बोलतोय, पण तुमचं 2 मिनिटानंतर 5 मिनिटानंतर माझ्याकडे लक्ष राहत नाही, तुमच्या मनामध्ये काहीतरी वेगळे विचार येतात फॉर एक्झाम्पल. सो इट इज सिम्पटम ऑफ एडीएचडी. म्हणजे असं जर तुम्हाला होत असेल फ्रिक्वेंटली की तुमचं कुठल्याच गोष्टीमध्ये मन लागत नाही, सो दिस कॅन बी द डिसीज और दिस कॅन बी द सिम्पटम टू दॅट डिसीज. सो हा डिसीज मोस्टली कशामुळे होतो? सो सी, कंझप्शन ऑफ फूड्स विथ ऍडेड फूड कलर्स. म्हणजे फूड कलर्स जास्त प्रमाणात मिक्स केलेले असतील आणि तशा टाइपचं फूड जर जास्त कंज्यूम झालं, सो तब ये डिसीज हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है. नाउ always remember, food colors are natural as well as artificial.
the food colors prepared from seeds, beetroot, flowers, and fruit concentrate are natural. Tetrazen, sunset yellow are artificial food colors used extensively. However, overconsumption of artificial food colors can be detrimental to health. Therefore, usage of natural food colors is always good. Okay, so from this paragraph, what we can conclude? We can conclude that it is okay to consume the food colors or the natural food colors. Okay, we have to avoid artificial food colors. Artificial food colors यानी कि क्या, कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाकर अगर वो फूड कलर्स बनाए जाते हैं, so we have to avoid consuming that. And if the ingredients that are used for making the food colors are natural, then those food colors are safe for consumption. Okay, so this is how we should take care of our health. Now the next substance is dye. So dye means sirf hair dye nahi, there are several types of dyes. So see, first is first paragraph, the colored substance which on applying to an article imparts that color to the article is called a dye. So see the definition of dye. What is the definition of dye? The colored substance which on applying to an article, म्हणजे एक कलर सब्सटेंस जो कि अगर किसी चीज को लगाया जाता है तो वो अपना कलर उस चीज पे ट्रांसफर करता है या फिर उस चीज को भी उसी कलर का बना देता है. So that substance is called dye. Generally, a dye is soluble in water and insoluble in oil. Often, a mordant has to be used to fix the color after dyeing the cloth. So see, now dyeing the cloth means we wear colorful clothes, okay, on occasions or festivals. So these colors are applied to clothes by the process of dyeing. Okay, and sometimes you might have noticed that if you purchase a cheap handkerchief or any other cheap cloth, so its color fades away. Okay, its color fades away after a few washes. So what can be the reason behind that? मतलब अगर आप कोई सस्ता वाला कोई कपड़ा खरीदते हो तो उसका कभी कभी क्या होता है, कलर चला जाता है एक दो वॉशेस के बाद या फिर तीन चार वॉशेस के बाद. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मॉर्डर्न हैज नॉट बीन अप्लाइड ऑन दैट. मॉर्डर्न इज व्हाट? मॉर्डर्न इज अ सब्सटेंस which solidifies the color. That means it does not allow the color to fade away. मतलब कि वो कलर जो है वो स्टिक करके रहेगा उस क्लोथ को अगर उस पे मॉर्डर्न यूज किया है. Okay, after dyeing, modern use of mordant is necessary. Then the color of the cloth will not go away. So plants are the main source of color for preparing a natural dye. Roots, leaves, flowers, barks, fruits, seeds, fungus, and pistils are used for making dyes. In Kashmir, a very good dye is made from saffron, which is used to dye fiber from which saris, shawls, and dresses are made. These are very costly. Many people are engaged in this occupation as their means of earning a livelihood. The use of henna leaves to color hair. The use of henna leaves to color hair is safe for health. So see, आता अब ये जो डाई करने की जो सब्सटेंसेस है या फिर जो मटेरियल है डाई डाई बनाने के लिए लगता है, सो दैट इज मोस्टली अ नेचुरल मटेरियल लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स. इन सब चीजों से डाई बनाई जाती है. ओके, आई डोंट नो यू हैव यूज्ड इट और नॉट, बट कभी कभी मतलब जब होली आती है ना, तो होली आती है तो मराठीमध्ये जर सांगायचं तर पळसाचं झाड तुम्ही ऐकलं असेल. ओके, पळस. ओके, तर पळसाच्या झाडाला ऑरेंज कलरची फुलं येतात. डू यू नो दॅट? ऑरेंज कलरची फुलं येतात आणि मोस्टली ती जी फुलं आहे ती फुलं कधी येतात? होळी ज्यावेळेस जवळ येईल त्यावेळेस येतात. ओके, तर त्या फुलांचा यूज करून आपण नॅचरल कलर बनवू शकतो होळीसाठी. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू नो ऑर यू डोंट. कोणाकोणाला माहिती आहे? कोणी कोणी यूज केलेलं आहे किंवा कोणी कोणी बघितलेलं आहे पळसाची फुलं कोणी कोणी बघितलेली आहेत? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन फ्लावर्स ऑफ द. ओके, धीरजने बघितलेलं आहे. व्हेरी गुड.
Okay, not use but saw. Okay, good. So this is this is natural kind of a dye. Again, see, saffron. Saffron means what? केसर. केसर का भी यूज किया जाता है टू मेक अ डाई. नाउ देखिए, केसर ही इतना महंगा होता है, सो उससे बनी हुई जो डाई है वो तो उससे भी ज्यादा महंगी रहेगी. एंड दिस डाई इज यूज्ड फॉर व्हाट? दिस डाई इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग ऑन द क्लोथ्स लाइक साड़ीज, शॉल्स एंड ड्रेसेस. सो ये जो साड़ीज है, शॉल्स है या फिर ड्रेसेस है जिसपे की सैफ्रॉन की डाई लगी है, दे आर वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ saffron is costly, and that's why few people or many people in the Kashmir are engaged in this occupation. मतलब ये उनका व्यवसाय है, उनका बिजनेस है. एंड उनका जो लिवलीहुड है, मतलब अर्निंग, रोज के लिए जो उनको पैसा लगता है खर्च करने के लिए, सो दैट कम्स फ्रॉम देयर ओनली. नाउ आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर लेट अस सपोज यू वांट टू डाई योर हेयर्स, मतलब अगर कुछ सफेद बाल हो रहे हैं, सो few people apply मेहंदी on it or the henna on it. Okay, so मेहंदी अप्लाई करने से भी क्या होता है, बालों को मनचाहा कलर दे सकते हैं फॉर एनी कलर. लाइक पहले तो मतलब मोस्टली ब्लैक ही कलर देने के लिए यूज किया करते थे, लेकिन अभी तो अगर आप सॉन्ग्स में या फिर मूवीज में देखोगे तो अलग अलग कलर के डाइज भी अवेलेबल है, बट दे आर आर्टिफिशियल. बट द नेचुरल डाई इज मेहंदी या फिर henna. Okay, henna leaves. So this is safe for health. There is no side effect of using mehendi for dyeing your hairs. Now, William Henry Perkin invented an artificial dye in 1856. Artificial dyes are classified into many types on the basis of chemical properties and solubility. Petroleum products and mineral are used in these dyes. So these are the substances that are used in the artificial dyes. So what are the uses of dyes? They are used for coloring clothes and hair. Fluorescent colors are used to make street boards and that are visible at night. So you might have observed at night or highways, the boards the boards shine. Okay, so they are fluorescent, that's why they shine at night. They reflect the light, so that's why they shine. Dyes are used to polish leather shoes, पर्सेस एंड चप्पल्स. सो जो शू पॉलिश करने वाले होते हैं उनके पास में भी जो डिब्बी में रहता है, दैट इज डाई. Adverse effects. So what are the adverse effects of dye? Dyeing hair can have adverse effects like hair fall, damage to hair texture, burning of skin, adverse effects on eyes, etc. So if we use artificial dye, then these adverse effect we can face. Okay, we might face. So if you are using natural dye, then mostly these effects will not be there. Lipstick contains a dye named carmine. It does not affect lips but causes stomach disorder or orders. So लिपस्टिक में एक carmine नाम की डाई होती है जो कि लिप के लिए कोई हार्मफुल नहीं होती. इट इज नॉट हार्मफुल फॉर लिप, बट इट इज बीइंग, इफ इट इज बीइंग कंज्यूम्ड, देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर स्टमक. मतलब अगर उस डाई को, वो अगर डाई पेट में चली जाती है, अभी लिप्स पे है तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टमक के अंदर भी जा सकती है. सो इट इज नॉट गुड फॉर योर स्टमक. नाउ, excessive use of plants for making natural dye results in deterioration of the environment. मतलब अगर हम प्लांट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी डाई बना रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है. ओके, इफ यू आर कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग डाइज excessively, then it is harmful for our environment. That is not good. So our next topic is artificial colors. So we regularly use artificial colors on Rang Panchami, decorating the house by painting. The red color used on Rang Panchami is very dangerous. It contains a high proportion of mercury in it. This poses risk like blindness, skin cancer, asthma, itching of the skin, permanent blocking of the sweat pores, etc. So see,
जब जो कलर हम खेल रहे हैं होली में, सो वी हैव टू चेक वेदर दीज कलर्स आर आर्टिफिशियल और नेचुरल. सो वो जो कलर्स है उसमें अगर मर्क्यूरी है, सो if mercury is present in that color, it can it it can make a person blind as well, or it can cause the skin cancer as well as asthma, itching of the skin, permanent blocking of the sweat pores. मतलब जिन पोर्स से स्वेट बाहर आता है ना जब हम भागते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो सो वो जो पोर्स है वो अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो वो स्वेट जो है वो बाहर आ नहीं पाएगा. सो इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. इट इज इट इज गुड एक्टिविटी इफ योर स्वेट कम्स आउट. अगर आपको पसीना आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो अपने बॉडी में रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं बाय द मीडियम ऑफ sweat. So it should not it should the pores should not be blocked. Therefore it is necessary that artificial colors are used cautiously. So I'll rather say don't use artificial colors at all. Before buying colors, just check what this color contains. What are the contents of this color? अगर उस color में कुछ harmful substances है, so don't use it. You can get the natural colors in the market as well. Now next one is deodorant. Deodorant body odor is caused by the bacterial decomposition of the sweat. A deodorant is used to prevent this odor. Everybody likes a fragrant deodorant to remain fresh the whole day. School children use deo on a large scale. This large scale use of deo in adolescent is result of the advertisement shown on television. Deodorants contain parabens, methyl, ethyl, propyl, benzyl, and butyl. Also, alcohol in large proportions, aluminum compounds and silica are also used. So deodorant का यूज सबने किया होगा. डिओड्रेंट किस लिए यूज करते हैं कि हमारा जो पसीना है, स्वेट है, सो इसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है, इट स्मेल्स और इट गिव्स अ बैड ओडर. सो टू अवॉइड दिस ओडर व्हाट वी डू, वी जस्ट sprinkle deodorant over our body so that we will get the fragrance or the fresh feeling. So इनका जो यूज है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेके मतलब अडल्ट भी इसका यूज करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ही इसका यूज करते हैं. एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी यूजेस इट. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि हमें टीवी पे दिखाया जाता है, उसके एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं ना डिओड्रेंट्स की, बराबर. सो इसकी वजह से क्या है कि इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है. बट इफ वी कीप आवरसेल्फ क्लीन, so we don't need to use deodorants frequently. मतलब अगर हम खुद को क्लीन रखते हैं तो मतलब हर रोज नहाना हो गया या फिर एवरीथिंग लाइक, तो इससे क्या होगा कि हमें डिओड्रेंट कम यूज करने की जरूरत पड़ेगी. डिओड्रेंट यूज कम क्यों करना है, बिकॉज देयर आर फ्यू आर्टिफिशियल केमिकल्स इन इट, लाइक अल्कोहल इज ऑल्सो इन द डिओड्रेंट. अगर आप कोई भी डिओड्रेंट की बोतल देखेंगे तो उसके जब आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे या फिर उसके व्हाट वी कैन से कंटेंट्स अगर देखेंगे तो उसमें अल्कोहल पक्का रहेगा ही. ओके, अल्कोहल इज फिक्स्ड इन एनी ऑफ द डिओड्रेंट. एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आर आल्सो यूज्ड. सो एल्यूमिनियम कंपाउंड से भी क्या होता है, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स भी अगर हमारी बॉडी पे ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में आ जाए डिओड्रेंट की मदद से, तो वो भी हमारे जो स्वेट पोर्स है, मतलब कि हमारा पसीना जहां से बाहर आता है वो पोर्स है, उनको ब्लॉक कर सकते हैं. एंड दैट इज अगेन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और आवर हेल्थ. Now, first one, there are certain types of deodorants. First one is ordinary deo. It contains a smaller proportion of aluminum. It decreases the odor of the sweat. So if the proportion of aluminum is less in any deo, so that is good to use. Okay, that can be used, but not excessively. Second one is antiperspirant deo. This decreases the extent of sweating. It contains about 15% of aluminum chlorohydrate. It clogs the sweat pores on the skin. So you might have observed कि कोई कोई इंसान को कम पसीना आता है, किसी किसी को ज्यादा पसीना आता है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. लाइक किसी को ज्यादा पसीना आ सकता है, किसी को कम पसीना आ सकता है.
सो जो जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है दे कैन यूज द एंटी पर्सपिरेंट ड्यू। सो इससे क्या होता है, इसमें एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में रहता है, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट जो है वो 15% रहता है, और ये क्या करता है, ये जो स्वेट पोर्स है उनको क्लॉग करता है या फिर थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करता है, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्वेट। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ एंटी पर्सपिरेंट ड्यू। सो थर्ड वन इज क्लिनिकल ड्यू। Some people sweat heavily and it has harmful effects on the skin. Clinical dew is meant for such people. It contains 20 to 25% aluminum used during night. So जो क्लिनिकल ड्यू है उसमें एल्यूमिनियम का प्रमाण और ज्यादा रहता है, एंड इट इज यूज्ड बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो ही क्लिनिकल ड्यू यूज करना चाहिए। So what are the harmful effects of deos? Aluminium, zirconium compounds are the most harmful chemicals in the deodorant. Disorders like headache, asthma, respiratory disorders, heart diseases are likely to occur without our knowledge. There is a possibility of various skin disorders and also skin cancer due to aluminium chlorohydrates. So स्किन के लिए भी ये जो प्रोडक्ट्स है, डिओड्रेंट्स है, ये अच्छे नहीं होते हैं इफ यू आर यूजिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, या फिर एक्सेसिवली अगर आप इनको यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन एज वेल। सो द नेक्स्ट सब्सटेंस इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर कोटिंग कुकिंग। Teflon is used for coating cooking utensils and industrial equipments to avoid sticking. It is the polymer of tetrafluoroethylene. Robert J. Plunkett discovered it in 1938. Its chemical name is पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेफ्लॉन देखा सबने है लेकिन याद नहीं रहेगा, या फिर आपने नोटिस नहीं किया होगा कि यही टेफ्लॉन है। सो जो नॉन स्टिक पैन्स रहते हैं, ओके, नॉन स्टिक पैन तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी कि उसमें कुछ भी चिपकता नहीं है, वेदर इट इज वाटर और ऑयल या फिर फूड, उसमें चिपक नहीं जाता है, बराबर। सो नॉन स्टिक पैन्स जो है उसमें टेफ्लॉन लगा रहता है, टेफ्लॉन इज देयर। सो इससे इससे क्या होता है, इससे हमारा फूड जो है वो उस पैन को चिपक नहीं जाता है। सो टेफ्लॉन का ये यूज है। तो सबसे पहले इसे जो फाइंड आउट किया था रॉय जे प्लंकेट ने फाइंड आउट किया था इसे 1938 में। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन? द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। मतलब टेफ्लॉन पे किसी भी चीज का केमिकल टेफ्लॉन की किसी भी चीज के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वेदर इट इज एटमॉस्फेरिक और लाइक एनी अदर केमिकल सब्सटेंस। neither water nor oil will stick to teflon coated articles, and you might have observed this as well। मतलब टेफ्लॉन की अगर कोटिंग किसी पैन पे है तो उस पे ना तो ऑयल स्टिक होता है या और ना ही वाटर स्टिक होता है। High temperatures do not affect Teflon as its melting point is 327 degrees Celsius. So this is the prime reason that we can use Teflon for our cooking utensils। मतलब अगर इसका melting point कम रहेगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, जब हम उसमें कुकिंग करेंगे तो हमारे फूड के साथ साथ में टेफ्लॉन का भी उसमें फ्लेवर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा, बराबर, वो मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल गेट मिक्स्ड विद द फूड। बट एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई, दैट इज 327 डिग्री सेल्सियस, सो इतना ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती है हमें कुकिंग के लिए, इतने ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट्स व्हाई द टेफ्लॉन never melts, it remains as it is, and that's why it does not get mixed with our food। Teflon coated articles are easy to clean। so जो पैन्स रहेंगे, जो मैं पैन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ये सब देखा है। so as compared to other vessels or utensils, it is easier to clean the non-stick pan। उसको क्लीन करना इजी रहता है क्योंकि उसमें कुछ चिपकता ही नहीं है, तो आसानी से जो भी उसमें कुछ रहा है वो निकल जाता है। टेफ्लॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर टेफ्लॉन cladded wires and parts are used in high technology electronics instrument। तो टेफ्लॉन जो है वो it is a poor conductor of electricity, it does not conduct electricity, so it can be used in electrical equipments or instruments as well। It is used for making non-stick
kitchenware. As I told you, the colored metal sheets of two-wheelers and four-wheelers are given a Teflon coating to protect them from damage due to high temperature and rain. तो अपना जो टू व्हीलर रहता है या फिर फोर व्हीलर रहता है, उसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है दैट इज ऑफ टेफ्लॉन। तो उससे क्या होता है, बारिश हो जाए या फिर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो गाड़ी को नुकसान ना हो, इसके लिए टेफ्लॉन की उस पर लेयर लगाई रहती है। सो इट डज नॉट, इट डू नॉट अलाउ damage to the vehicle by rain or the temperature. So this is how Teflon is very useful substance. Next one is powder coating. Now it is a process, it is not a substance. Okay, powder coating is a method of applying a layer harder than paint on the surface of an iron object to prevent rusting. In this method, a polymer resin, a pigment, and some other ingredients are mixed, cooled, and ground into a uniform powder. This powder is sprayed on the polished metal surface by electrostatic spray decomposition. In this method, the particles of the powder are given an electrostatic charge, due to which an uniform layer of powder sticks to the metal surface. Then the object is heated in the oven over along with the coating. A chemical reaction occurs in the layer, resulting in formation of long crossed polymeric chains. This powder coating is highly durable, hard, and attractive. Powder coating can be done on plastic and medium density fiber board in day-to-day use as well. तो पाउडर कोटिंग इज बेसिकली व्हाट, पाउडर कोटिंग में पाउडर कोटिंग यानी कि दूसरी लेयर चढ़ाना। फर्स्ट लेयर इज ऑफ पेंट, मतलब किसी मेटल को अगर हमें पेंट करना है तो पहले उसे नॉर्मल पेंट से पेंट किया जाएगा, उसके बाद में उसमें पाउडर कोटिंग चढ़ाई जाएगी। तो पाउडर कोटिंग किस तरह से की जाती है इसका मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखा देता हूँ यूट्यूब पे, जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स है पॉलीमर रेजिन, पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स। तो इनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठंडा किया जाता है और इनको बारीक पाउडर बनाया जाता है इसका। तो उस पाउडर की मदद से कोटिंग की जाती है। नाउ आई विल जस्ट शो यू द वीडियो so that you will understand properly. Let me just go to the YouTube and search for the video. Just give me a second, students. See, this is the gun. ये गन है जिससे कि हम and this is the material that we want to use as a paint. See, now the material is connected to the gun. Okay, and when we press the nozzle, see, this is the powder coating. This is the substance that we want to coat. अभी इस पे पाउडर जमा हो रहा है या फिर उस पे पेंट हो रहा है एक तरीके से। ओके, नाउ आफ्टर द पाउडर कोटिंग द सब्सटेंस नीड टू बी हीटेड, उसको गर्म करना पड़ता है सो दैट द कोटिंग सॉलिडिफाइज। ओके, सो दैट वाज द पाउडर कोटिंग। नाउ एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में देखिए क्या करना पड़ता है। A protective layer is formed naturally on the surface of aluminum metal by reaction with oxygen in air. In the anodizing process, this layer can be made of the desired thickness. Anodizing is done by electrolysis. Dilute acid is taken in the electrolytic cell and aluminum article is dipped in it as anode. When an electric current is passed, hydrogen gas is released at the cathode and oxygen gas at the anode. A reaction with oxygen occurs and a layer of hydrated aluminum oxide is formed on the anode, that is iron article. This layer can be made attractive by adding color in the cell during electrolysis.
वी यूज एनोडाइज्ड कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक ग्रिडल्स एंड कुकर्स। तो हमारे घर में जो तवा है या फिर कुकर है वो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का ही है। एनोडाइजिंग में एग्जैक्टली क्या करते हैं, एनोडाइजिंग में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की, एंड इससे क्या होता है, उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इटसेल्फ। सो इसका यूज करने का एडवांटेज क्या है, व्हाई वी यूज दैट। तो एक बार उसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया तो बाद में उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दैट फॉर कुकिंग पर्पजेस। नो एनोडाइजिंग की किस तरह से जाती है, एल्यूमिनियम को एनोडाइज किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस अपनाई जाती है। आई थिंक यू माइट हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक टैंक रहता है जिसमें कुछ सॉल्यूशन रहता है, दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं एनोड एंड कैथोड, उनको सप्लाई दिया जाता है, बराबर। एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड, एंड द इलेक्ट्रोलाइट या फिर जो सॉल्यूशन उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रहेगा दैट इज अ डाइल्यूट एसिड मोस्टली। सो इस तरह से एनोड या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। मैं एल्यूमिनियम के एनोडाइजिंग का भी आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो जस्ट गिव फ्यू मोर सेकंड्स टू मी, आई विल बी शोइंग यू द एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, सी दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इस डब्बे में जो रखा है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अभी इसने जो डिप किया है दिस इज एल्यूमिनियम रॉड। सो एल्यूमिनियम रॉड आपने अभी तक देखा नहीं, तो देखिए, सो दिस इज ग्राउंड। ये जो ब्लैक रहता है ना ग्राउंड है, इसमें एक डाइल्यूट एसिड है दैट इज एल्यूमिनियम रॉड। छोटा सा जो उसने रखा ना वो अभी वो एल्यूमिनियम का है ना। इस एल्यूमिनियम को हमें क्या करना है, पॉजिटिव कनेक्ट करना है। पॉजिटिव कनेक्ट क्यों करना है, बिकॉज दिस इज एनोड, एनोड को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं ना। सो देखिए क्या हो रहा है, इसमें एनोडाइजिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। नाउ एज यू कैन ऑब्जर्व द बबल्स इनसाइड इट, अगर आप बबल्स ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बबल्स इस साइड में रहेंगी, राइट साइड में। ये जो स्ट्रिप है ना एल्यूमिनियम की या फिर जो रॉड है ना एल्यूमिनियम का, वहां से आपको बबल्स राइट साइड में थोड़े थोड़े जाते हुए दिखेंगे। मैंने वीडियो पॉज किया है, अभी नहीं दिखेंगे, तो फिर से आपको दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए जूम करके। तो दैट इज हाइड्रोजन दैट इज बीइंग रिलीज्ड एट द कैथोड। ओके, सी फिर से एक बार देखिए, कैन यू ऑब्जर्व द बबल्स अगेन। आप लोगों को बबल्स दिख रहे हैं या फिर नहीं? कैन यू हियर मी? ओके, धीरज कैन हियर मी ओनली आई थिंक। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, you don't see bubbles, just zoom in, okay, and observe again. See, small tiny bubbles are there. So basically these are hydrogen bubbles. Now it has been kept for anodizing. They are here, Maitreya. Okay, see, they, in this portion, यहाँ पे इस जगह पे आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं जहाँ पे अपना माउस घुमा रहा हूँ ना, सी यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज किया, मैं फिर से प्ले करूंगा। यहाँ पे आपको बबल्स दिखाई देंगे, या ऑन द राइट, सी अगेन आई एम प्लेइंग, या ओके। सो दैट वाज हाइड्रोजन एट द कैथोड। अभी एल्यूमिनियम को हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है बाहर से। तो ये अभी एनोडाइजिंग थोड़ी देर के लिए उसको, यस, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया है यहाँ पे। तो अभी इसको निकाल लेंगे, बाद में इसको क्लीन कर लेना है। नाउ क्लीन करने के बाद में व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर पेंटिंग दैट रॉड। देखिए उसको पेंट कर रहे हैं। सो पेंटिंग के लिए हम उस इलेक्ट्रोलाइट में भी पेंट डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली पेंटिंग कर रहे हैं। सो दैट इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम।
एंड नाउ टू सॉलिडिफाई द कलर, अभी उस कलर को सॉलिड करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं, दैट कलर को, मतलब उस सब्सटेंस को कंप्लीटली. So that is your anodized aluminum rod or the strip. Okay. So इसका एडवांटेज क्या है? What is the advantage of anodizing? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके आउटसाइड में फॉर्म होगी. ओके, उसके सरफेस पे कौन सी लेयर फॉर्म होगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. एंड इट विल नॉट रिएक्ट विथ एनवायरमेंटल गैसेस और द अदर एलिमेंट्स. तो एक तरह से क्या हो जाएगा कि ये इनएक्टिव बन जाएगा. सो इट इज यूजफुल फॉर यूजिंग इट इन फॉर द कुकिंग अटेंसिल्स. नाउ सेरेमिक, सेरेमिक तो सब लोगों ने देखा ही होगा, बराबर. सेरेमिक किसने नहीं देखा है? नाउ सेरेमिक इज heat resistant substance formed by kneading an inorganic substance in water and then shaping it and hardening it by heating. Pots made by a potter, manual roughing tiles, construction bricks, pottery, terracotta articles are some examples of common ceramic articles that we see around. So ceramic के articles बाकी सब आप लोगों ने देखी है या फिर नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन जो चाय के कप होते हैं या फिर मग होते हैं चाय के, सो वो तो सिरेमिक से बने रहते हैं, तो वो सब लोगों ने देखे होगा, बराबर. तो सिरेमिक इज व्हाट? सिरेमिक इज मतलब सम टाइप और स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल इज देयर, एक अलग टाइप की मिट्टी रहती है, और उसी को नीड करके, यानी कि उसका मड बना के क्या करते हैं, शेप दिया जाता है, कप का हो या फिर किसी और पॉट का हो. तो इस तरह से सिरेमिक के यूटेंसिल्स बनते हैं. दिस इज हाउ सिरेमिक आर्टिकल इज मेड. व्हेन when clay is needed in water, shaped and then fired in a kiln at a temperature of 1000 to 1150 degrees Celsius, a porous ceramic is formed. To overcome the porosity, the fire object is covered with finely ground glass powder suspended in water glaze, and then it is fired again. As a result, the surface of the ceramic becomes shiny and its porosity disappears. तो जो कप आपने देखा है आपके घर में या फिर कहीं पे भी सिरेमिक का, तो एकदम स्मूथ रहता है, बराबर. जबकि हमारे घर में जो मटका रहता है, मटका थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहता है, उसका सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? क्योंकि बिकॉज पोर्स आर देयर इन द पॉट, मड पॉट, या फिर जो मिट्टी का मटका रहता है ना, उसमें पोर्स रहते हैं. लेकिन सिरेमिक में उस पोर्स को किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है? तो उस पे ग्लास पाउडर लगाया जाता है, मतलब कांच का पाउडर उस पे लगाया जाता है विद, मतलब पानी में उस कांच के पाउडर को मिला के उस पे लेप लगाया जाता है. एंड अगेन इट इज फायर्ड, मतलब उसको फिर से गर्म किया जाता है. एक बार वो सिरेमिक का पॉट बन गया, उस पे ग्लास पाउडर का एक लेयर लगाएंगे एंड फिर से उसे गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो जो ग्लास है वो पिघलेगी एंड दैट ग्लास विल कवर अप द होल पोर्स आउटसाइड और इनसाइड द अटेंसिल. मतलब कि वो जो ग्लास है, कांच है, वो क्या करेगी? उस पोर्स को फिल कर देंगी एंड इट विल गिव इट द स्मूथ सरफेस हमें मिलेगा. नाउ पोर्सिलिन. What is porcelain? Porcelain is a hard, translucent, and white colored ceramic. It is made by using the white clay called kaolin found in China. Glass, granite, and the mineral feldspar is mixed with kaolin and kneaded with water. Now, porcelain is also a type of ceramic. ये भी सिरेमिक का ही एक टाइप है, लेकिन मेजर डिफरेंस बिटवीन पोर्सलिन एंड सिरेमिक इज, सिरेमिक जो होता है, सिरेमिक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. ओके, बट इट इज पोर्सलिन इज नाइदर ट्रांसपेरेंट बट इट इज ट्रांसलूसेंट. मतलब क्या है कि ये ना ही ट्रांसपेरेंट है ना ही ओपेक है, तो इसमें कुछ मात्रा में लाइट जो है उसके थ्रू जाती है, और मतलब इट डज नॉट कंप्लीटली ब्लॉक द लाइट. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पोर्सिलिन एंड सिरेमिक. पोर्सिलिन का एक और फायदा क्या है कि पोर्सिलिन इज हार्डर एज कंपेयर टू द सिरेमिक. पोर्सिलिन कैसा है? थोड़ा सा हार्ड है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. नाउ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज शेप्ड एंड फायर्ड in a kiln at a temperature of 1200 degrees Celsius to 1450 degrees Celsius.
On firing again after glazing, beautiful articles of porcelain are obtained. So which porcelain vessels are used in the laboratory? Now you have to ask your teacher in your school, in your laboratory, that which material or which vessel is made up of porcelain. So पोर्सलिन का जो वेसल रहेगा उस पर अगर आप लाइट डालोगे, हाई इंटेंसिटी की लाइट होनी चाहिए, थोड़ी सी, मोबाइल का फ्लैश होगा तो भी चलेगा, तो क्या होगा, उससे कुछ लाइट पास होगी, कुछ लाइट ब्लॉक हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट टाइप इज बोन चाइना. So bone china is made by adding some ash of animal bones in the mixture of china clay, feldspar, and fine silica while making porcelain. This ceramic is harder than porcelain. So bone china में और पोर्सलिन में क्या फर्क है? पोर्सलिन में सॉरी बोन चाइना में एडिशनल सब्सटेंस एक रहता है. व्हाट इज दैट? दैट इज एश ऑफ एनिमल बोन्स. मतलब कि जानवरों की जो हड्डियां रहती है उसकी राख बोन चाइना में मिक्स की जाती है. मतलब जब उसका उसका मिक्सचर बनाया जाता है ना, अटेंसिल्स बनाने के लिए जो मिक्सचर बनाया जाता है, उस मिक्सचर में एनिमल की हड्डियों की राख डाली जाती है, एंड देन द substance or the object or the vessel is made, and that is called bone china. तो bone china की जो हार्डनेस है that is greater than the porcelain. मतलब पोर्सलिन से भी बोन चाइना कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है. तो सबसे हार्ड क्या हुआ? बोन चाइना. सेकेंड वन इज पोर्सलिन, एंड एट लास्ट इट इज सिरेमिक. ठीक है. सो इस तरह से मतलब तीनों भी अगर आप देखोगे तो तीनों को देख के डिफरेंस नहीं पता चलेगा. बोन चाइना, पोर्सलिन और सिरेमिक को हम सिर्फ देखते ही डिफरेंस नहीं बता सकते, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा एग्जामाइन करेंगे या फिर उसमें कुछ टेस्ट करेंगे, लाइक लाइट टेस्ट हो, तो उस तरह के तरीके से हमें समझ में आता है. अभी बोन चाइना का वेसल किस तरह से आइडेंटिफाई करें, तो उस पर लिखा जाता है. ओके. जो भी बोन चाइना का वेसल बनाया जाता है ना, उसके बॉटम में मोस्टली लिखा रहता है कि इट इज लाइक it is bone china type of material, so that it is very easy to identify the bone china vessels or utensils. Now advanced ceramic oxides like alumina, Al2O3, zirconia, silica, and some other compounds like silicon carbide, boron carbide are used instead of clay for making advanced ceramic. This ceramic requires a temperature of 1600 degree to 1800 degree Celsius and an oxygen free atmosphere for firing. This process is called sintering. तो एडवांस सिरेमिक में क्ले की जगह जो नॉर्मल क्ले रहती है, मोस्टली वो जो क्ले है वो चाइना में मिलती है. सिरेमिक के लिए जो क्ले की जरूरत पड़ती है ना, मिट्टी, तो वो चाइना में मिलती है. तो उस मिट्टी की जगह पे हम इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, लाइक ऑक्साइड, एल्यूमिना, जिरकोनिया और सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड और बोरॉन कार्बाइड, इन चीजों का यूज कर सकते हैं और इनको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इन एन एनवायरमेंट दैट इज ऑक्सीजन फ्री. ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में से फायर करना पड़ता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंटरिंग. इस तरह से बनते हैं एडवांस्ड सिरेमिक्स. Ceramics can withstand high temperature without decomposing. Ceramic is brittle, water resistant, and an electrical insulator. Therefore, it is used in electrical instruments for coating the interior of kiln, the outer surface of ships, and blades of jet engines. A ceramic type of ceramic tiles are fixed on the outer layer of space shuttle. Some types of ceramics are used as superconductors. तो सिरेमिक्स के बहुत सारी जगहों पे यूज है, लेकिन सबसे नॉर्मल यूज आप लोगों ने अभी देखा होगा. सिरेमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिरेमिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज अ इंसुलेटर. तो जो बड़े बड़े पोल्स रहते हैं खेतों में, आपने देखे होंगे बड़े बड़े पोल्स रहते हैं. तो इसमें सी लेट अस सपोज दिस इज अ पोल. हाँ, आई एम ड्राइंग दैट पोल. तो इस तरह के कुछ पोल्स रहते हैं. आप लोगों ने कभी देखे हैं कि नहीं देखे, मुझे नहीं पता. ओके. सो इस टाइप के पोल्स रहते हैं बड़े बड़े, एंड इस तरह से उनपे तारे लगी हुई रहती है. ओके. एंड इन तारों के बीच में एक ऐसा जिगजैग टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है. ओके. इस तरह का, दैट इज रेजिस्टर एंड इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ सिरेमिक. सिरेमिक से बना जाता है, सिरेमिक से बना हुआ वो रेजिस्टर रहता है. ठीक है. तो
खेतों में मोस्टली इस तरह के पोल्स रहते हैं, और ये जो थे वो तार थे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा जो है ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। बाकी के जो चैप्टर है मोस्टली जो नए सर है मैडम है वो लेंगे। ओके, सो दिस वाज माय पोर्शन एंड इट इट हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। ओके, सो चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय। चलो बाय बाय। Dheeraj, Aryan, class is over. You can leave the class.